Good morning, students. Students, as in our previous video, we were discussing about vegetative propagation. There I told you that what is vegetative propagation and how it occurs naturally. So in the continuation today I will tell you how the vegetative propagation occurs artificially. Before starting today's concept, I want to recapitulate very quickly that what is vegetative propagation. As we know that there are two types of parts in the plant's body: sexual part like flower, and other vegetative part like stem, root, and leaf. If except then flower, any vegetative part is responsible. Either root is responsible, shoot is responsible, or stem is shoot in shoot like stem is responsible or leaf is responsible for propagation, for reproduction process, then we can say that it's vegetative propagation. So today I will tell you that some of the farmers or plant growers are using these vegetative parts of the plant to develop or to produce or to propagate new plants, and they are mostly using three different techniques for it. And these techniques are basically called as cutting, layering, and grafting. So three techniques which are utilized by plant growers for artificial propagation are called cutting, layering, and grafting. So one by one I will tell you that what is cutting. Students, cutting or in this type of propagation, any part of the plant, either it is root, stem, or leaf, is cut and buried partially into the moist soil. तो क्या करते हैं इसमें, चाहे कोई भी पार्ट ले लो आप, मोस्टली इसमें स्टेम का पार्ट लिया जाता है, एक स्टेम या रूट या लीफ का वो पार्ट सेलेक्ट किया जाता है जिसके पास बड हो या नोड हो, जहाँ से कल आने वाले फ्यूचर में रूट लाइक स्ट्रक्चर से राइज हो सकें। ठीक है, तो इसको लिया जाता है और इसको कट किया जाता है और इसको पार्शियली सॉइल में बरीड किया जाता है, यानी मिट्टी में दबा दिया जाता है। ठीक है, और वो सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो कि मॉइस्चर वाली होनी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर ज़्यादा हो। एंड मैनी प्लांट्स आर ग्रोन बाय दिस मेथड। तो आप लोग घरों में देखा होगा, आप लोग रोज़ की कटिंग करते हैं हम लोग, तो इट इज़ डन इन रोज प्लांट, क्राइसेंथेनम, ग्रेप्स। ठीक है, वी आर मोस्टली द ग्रोवर्स और द प्लांट ब्रीडर्स आर बेसिकली using this technique for the cultivation of the rose plant, chrysanthemum plant, grapes plant, for a large scale production of these plants. The second method is called layering. Okay, what is layering? I am telling you that in brief. Okay, the adventitious roots are produced in the branches of the stem before the plant is detached from the parental plant. देखो कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे ब्रांचेज अराइज होती हैं, और इन ब्रांचेज के जो नोट्स होते हैं, इन नोट्स से एडवेंटियस रूट्स निकलती हैं। ट्रू रूट्स के अलावा एडवेंटियस रूट्स, एडवेंटियस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू रूट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, सो देर इज़ ए प्लांट, ठीक है, एंड विच हैज़ बेसिकली दिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स विच आर सर्व टाइप इन नेचर। ठीक है, तो उनमें जो लॉन्ग जो ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज में नोट्स होते हैं, एंड फ्रॉम द नोट्स एडवेंटियस रूट्स कैन अराइज. So what happens in this case, तो a branch which is scattering और which is spreading, it is called as layer. तो एक ऐसी ब्रांच जिसका हम यूज़ करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं लेयर। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेयरिंग. सो व्हाट हैपन्स, हम एक प्लांट की एक ब्रांच ले लेते हैं एंड वी कैन टर्न इट इन यू शेप। हम उस ब्रांच को, लंबी सी ब्रांच है, उसको यू शेप में टर्न कर लेते हैं, और जहाँ पे नोड है एक्चुअल में, वहाँ पे हम एक शार्प नाइफ ले लेते हैं, उसकी मदद से उसको थोड़ा सा पील कर लेते हैं, छिल लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसे सॉइल में दबा देते हैं। ठीक है, तो यू शेप का स्ट्रक्चर आपका बनेगा। यू शेप में आपने एक ब्रांच को लिया, और जहाँ पे यू का टर्न बनता है वहाँ पे आपने क्या कर लेना है, नोड को लेना है और उसको आपने सॉइल में दबा देना है। तो आफ्टर टाइम, सम टाइम, द एडवेंटियस रूट्स विल इमर्ज आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड, एंड if you will cut that particular branch from the parental branch, so you will find out that there are two plants. One is the parental plant and one is the, after layering, a new uh, plant will arise. ठीक है, तो basically the layering method is layering method is used in the propagation of various plants like lemon में इसका यूज़ होता है, गुआवा में, हिबिस्कस में, बोगनवेलिया में, जैस्मिन में, रसबेरी में, और स्ट्रॉबेरी में। और इसके अलावा कई सारे आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं उनमें भी इस लेयरिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट वन मेथड इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग. नाउ व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग? आई एम टेलिंग यू दैट इन दिस मेथड the reproduction of two closely plants takes place. ठीक है, in this method of reproduction, two plants of closely related varieties are joined together so that they live as one plant. तो actually
सपोज आपके घर में एक पेड़ है पीच का, ठीक है, उसमें पीच का पेड़ है आपका, और उसमें आप प्लम अगर उगाना चाहते हैं तो क्या आप उगा सकते हैं? यस, बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज़। तो आप क्या करेंगे, तो सपोज आपके घर में पीच का पेड़ है तो पीच की एक ब्रांच को आप काट लेंगे, और उसको काटने के बाद उस ब्रांच की जगह पे आप प्लम की एक ब्रांच लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स हियर, इन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, टू क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज आर जॉइंड टुगेदर सो दैट दे लिव इन वन प्लांट। तो दो क्लोजली रिलेटेड जो वैरायटी हैं प्लांट्स की, उनको ज्वाइन कर लिया जाता है और एक ही प्लांट पे उनको ग्रो करवा लिया जाता है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड ऑन द अदर प्लांट इज कॉल्ड स्कियन, and the plant in which the grafting is performed is called stalk. So here you are observing in the diagram, scion is the part of branch which is going to be inserted, which is going to be added, and the stalk is the part, main plant part in which the scion is going to be added. तो आप देख रहे हैं कि स्कियोन अलग पार्ट है, स्टॉक अलग पार्ट है। तो स्कियोन को ऐड किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है किसके ऊपर? स्टॉक के ऊपर। एंड दिस मेथड इज अप्लाइड टू इम्प्रूव द वेराइटीज ऑफ द फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, पीज एंड वेरियस सिट्रस प्लांट्स एज वेल एज गुआवा। तो इसको इन डिफरेंट वेराइटीज़ में अप्लाई किया जाता है। तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज स्कियोन एंड व्हाट इज स्टॉक। इन ग्राफ्टिंग, scion is attached over the stalk, so you must have to remember this particular point. So after that I want to discuss very quickly what are the advantages and disadvantages of vegetative propagation. So vegetative propagation is very advantageous because it's cheaper, easier and more rapid method of the propagation in the plants than growing plants from other seeds. देखिए मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई प्लांट चाहिए मैंगो का, तो आप उसका सीड बोएंगे, देन प्लांटलेट बनेगा, then it will grow and become tree, then after some time it will start flowering, then fruits will produced. अगर हम सीधे सीधे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से तैयार करते हैं तो आने तो जो 10-15 साल का टाइम इसमें बर्बाद होता है, वो बहुत कम समय में आप क्या कर सकते हैं, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू एक अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीपर भी है, ईजियर भी है और मोस्ट रैपिड तरीका भी है, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा, सपोज आपके घर में, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन, आपके घर में मैंगो का कोई ट्री है, उस मैंगो का ट्री जो है बहुत मीठे मैंगो होते हैं और बहुत बड़े साइज़ का मैंगो होता है और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी है। तो आप चाहेंगे कि ऐसा ही मैंगो हमेशा होगे ना, तो लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हो सकता है करेक्टर्स की इंटरमिक्सिंग हो, ये करेक्टर वापस चला जाए। तो अगर आपने मेंटेन रखना है सेम करेक्टर को, तो आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही हो सकता है। तो आप करेक्टर्स को प्रिवेंट करके रख सकते हैं, ठीक है। यू कैन मेंटेन द बेटर क्वालिटी ऑफ द करेक्टर्स टू, ठीक है। एंड after all, one more thing I want to tell you, that there are various varieties which are कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटीज़। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट किया करने के बाद हाइब्रिड वैरायटीज़ को तैयार किया जाता है। इफ़ हाइब्रिड वैरायटी ऐसी आर दोज वैरायटी विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। अगर इन वैरायटीज़ को अगर हमें मेंटेन करना है तो हमें क्या करना होगा, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ही कराना पड़ेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कराना पड़ेगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हाइब्रिड दोबारा से उन करेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकता है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो फार्मर्स हैं वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लांट ग्रोवर्स इसका यूज़ करते हैं। एंड देयर आर वेरियस वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस वाइबल सीड्स। तो कई वैरायटीज़ ऐसी हैं प्लांट्स की जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनके लिए केवल और केवल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही एक मेथड रहता है थ्रू विच they can increase their population or they can continue the species formation, ठीक है। एंड फाइनली आई वांट टू टेल यू दैट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ अ वेरी गुड मेथड to obtain genetically similar offspring. So this is usually introduced in the plant breeding, ठीक है। Now there are, along with the advantages, there are some disadvantages too. तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इंक्लूड्स ओवर क्राउडिंग। बहुत तेज़ी से बहुत रैपिडली पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। And there will be no genetic variation after the vegetative propagation, so there will be no chance of variation, and if there will be no chance of variation, तो plants will not be able to adapt itself according to changing environmental conditions. एंड तीसरा डिसएडवांटेज, जहाँ एडवांटेज है तो वहाँ डिसएडवांटेज भी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्लांट को कोई बीमारी लग जाती है, कोई डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू वही डिजीज़ उसकी ऑफस्प्रिंग में भी चले जाएगी, सो क्योर ऑफ द डिजीज़ इज़ नॉट पॉसिबल। द प्लांट्स लूज देयर वीगर, वीगर मीन्स वेरिएशन नहीं आएगा, एवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे।
Or last one, no new characters cannot be introduced, either it has desirable or undesirable characters. So I mean to say that new characters can't be introduced while we are going for the vegetative propagation. और इसके अलावा कोई अनडिजायरेबल करेक्टर अगर किसी प्लांट में है तो उसे रिमूव भी नहीं किया जा सकता। जैसे एडवांटेज में हमने देखा था कि डिजायरेबल करेक्टर को कैरी कर सकते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ऐसे ही अनडिजायरेबल करेक्टर भी कैरी होता चला जाएगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, सो आई एम कंक्लूडिंग माई सेल्फ कि vegetative propagation is a method of reproduction in which vegetative part of plant is going to participate in the process of the reproduction. ठीक है, and today we discuss three different techniques of artificial vegetative propagation: cutting, layering, and grafting. And finally we discuss some advantages and disadvantages of vegetative propagation. If you are feeling any difficulty, ask me directly, or you can send me SMS or WhatsApp messages. So I will meet you once again in the next video. Till then, thank you and bye bye. Have a nice day.